टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विद कृति। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर फॉर आर 11th मार्च। वीडियो शुरू करने से पहले वांटेड टू टेल यू वन थिंग दैट इनटू दिस सेशन हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। एक तो होगा हमारा इंटरनेशनल न्यूज़, दूसरा है नेशनल न्यूज़, देन वी विल सी फॉर करंट अफेयर क्विज विच वुड बी फन एंड इंफॉर्मेटिव इन दी एंड। सो लेट्स गो अहेड विद आवर टुडेज सेशन। नेशनल न्यूज़ हम कवर करते हैं। इंडिया साइना नेहवाल लॉसेस टू थाईलैंड्स रेस्टनॉक इनाटॉन 10-21 15-21 in women's singles match of German Open. PM Modi recently Gujarat visit करते हैं on 11th March को, which is today, and March 12 as well to attend various programs there. Prime Minister Narendra Modi congratulated South Korea's President-elect Yoon Suk Yeol on his victory in the presidential election. Bhagwant Mann, Aam Aadmi Party CM candidate for Punjab, to visit Delhi today to meet party convener Arvind Kejriwal. As you know, कल जो है पंजाब की इलेक्शन का रिजल्ट आया और वहाँ पे आप जीत गई। BJP confirmed its return to power in Uttarakhand by winning 47 seats in the 70-member assembly. And as you know, कल यूपी के जो है चुनाव का रिजल्ट भी आया और वहाँ पे बीजेपी जीती। So योगी आदित्यनाथ becomes first CM, UP CM in 37 years to retain power after completing full term. Let's go for our international news. Sony Music says it's suspending operation in Russia in protest of this war. Russian President Vladimir Putin chair a meeting of the government to formulate a response to Western sanctions. Bank for International Settlement suspends Russian Central Bank. President Zelensky signs law allowing confiscation of Russian property in Ukraine without any compensation in it. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो है वार्न किया कि जो भी ग्लोबली उन पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू पे प्राइस। रशिया कुड सेंड ग्लोबल फूड प्राइसेस सोअरिंग हियर। लेट्स सी, क्रूड ऑयल तो अभी वैसे भी बहुत ऊपर चल रहा है। इस्लामिक स्टेट नेम्स न्यू लीडर, कन्फर्म्स डेथ ऑफ अबू इब्राहिम अल कुरैशी। G7 यानी कि G7 उन कंट्रीज को बोलते हैं जिनकी वर्ल्ड में सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी है। So G7 is looking at measures to halt gas price hike and calls on oil and gas producers to increase deliveries. US to give another $50 million through the UN's World Food Program to assist with humanitarian aid. Facebook eases rules to allow violent speech against रशियन इन्वेडर्स हेयर। बेसिकली क्योंकि ऐसे अजॉल्ट नहीं कर सकते और किसी के खिलाफ वायलेंट स्पीच नहीं दे सकते, लेकिन जो रशिया फिलहाल कर रहा है तो उसके लिए रूल्स यहाँ पे लीनियंट कर दिए गए हैं। वाफ्टा प्रेसिडेंट प्रिंस विलियम to skip this year's award ceremony. Around 1 lakh people evacuated from Ukraine cities in 2 days, said President Volodymyr Zelensky. Okay, war, let's talk about it. War in Ukraine calls for international cooperation and solidarity to support everyone affected and to overcome clear violation of international law. ये स्टेटमेंट पास किया गया है रिसेंटली बाय आर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, एट यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर Oleksiy Reznikov has described Russia's invasion as ये terrorist war हो रहा है as per his. 2 North Korean missile launches in recent weeks were test firing of powerful new long-range intercontinental ballistic missile. Full range test is to follow. Russia promises to open daily humanitarian corridors from 10 AM every day. लेकिन इसमें सिर्फ जो है वो रशिया अलाउ होगा without the permission of the Ukrainian government, which is going to be quite tricky. US Vice President Kamala Harris announces around $53 million in new humanitarian assistance from US government through USAID to support innocent civilians affected by Russia's unjustified invasion of Ukraine. Moscow has never wanted war and seeks to end the current conflict. ये स्टेटमेंट पास किया गया है आने के लिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव के द्वारा। Then why they are doing it? So guys, as you know that कि we deliver here
current affairs like on each Monday, Wednesday and Friday. So today is Friday and here we have. You can find me on Instagram as well, that is KratiSahu2605. There I share information, and Study Shift with Krati 2 is my second channel. Okay, so लास्ट में हम क्या करते हैं, एज यूजुअल कुछ क्विज डिस्कस कर लेते हैं. देखो क्विज के लिए मैं आपको एक क्विज लास्ट में दूंगी. मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपसे पूछा था, मुझे उसका आंसर का इंतज़ार ज़रूर रहेगा. लाइक सम ऑफ यू ऑल्सो कमेंटेड देयर. आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि अगर आपको ये जो करेंट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड कुछ और भी पता है तो आप शेयर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट BBIN मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट. सो लेट मी टेल यू, ऑप्शन देखते हैं. भूटान नेपाल, बांग्लादेश नेपाल, भूटान, कंबोडिया नेपाल और बांग्लादेश म्यांमार नेपाल. देखिए BBIN है क्या? BBIN है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट. तो ये साइन किया गया है. एंड अभी चूंकि मैंने भूटान का नाम भी मेंशन किया, नेपाल का भी किया, बांग्लादेश का भी किया. सिंस हमारे COD में से ये कंट्रीज तो इन्वॉल्व नहीं है तो हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं. यहाँ पे बात करते हैं. बट ये जो रिसेंटली मोटर व्हीकल अग्रीमेंट साइन हुआ है, दिस हैपेंड लाइक इंडिया ने साइन किया बांग्लादेश एंड नेपाल के साथ, बिकॉज देयर भूटान वॉज जस्ट एज अ ऑब्जर्वर कंट्री. ठीक है, सो राइट आंसर वुड बी बी, दैट इज बांग्लादेश एंड नेपाल के साथ, just in order to make the trade connectivity more flexible for these countries. ये recently sign किया गया है. सेकेंड देख लेते हैं. what is परम गंगा which was seen in the news recently. परम गंगा क्या कोई कोविड वैक्सीन है या फिर गंगा गंगा रिजुवेनेशन स्कीम, सुपर कंप्यूटर और क्रिप्टो करेंसी. सो इट्स नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, नाइदर आर COVID vaccine nor Ganga rejuvenation scheme. It is actually a supercomputer. Param Ganga is something that's recently deployed by IIT Roorkee. तो ये जो है एक सुपर कंप्यूटर है यहाँ पे. थर्ड देखते हैं. विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कौशल मातृत्व योजना. तो कौशल मातृत्व योजना उड़ीसा ने लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ ने, गुजरात में एंड राजस्थान ने. तो इसका सही आंसर है एक्चुअली बी, दैट इज छत्तीसगढ़. कौशल मातृत्व योजना इज दिस स्कीम लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ CM. इससे पहले भी वहाँ पे कई सारी स्कीम आई है. इस स्कीम के तहत all the mother who are going to give birth to their second girl child, they will be getting stipend of 5,000. So which is going to be like कि लड़की होना जो है वो एक कोई बुरी बात नहीं. इट इज समथिंग लाइक प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी है. एंड इससे पहले भी कई सारी स्कीम जो हैं यहाँ पे लॉन्च की गई थी. ओके, सो दिस वाज आवर होल सेशन अबाउट आवर 11th मार्च करंट अफेयर. अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है बताने के लिए या कोई सवाल है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिफ्ट विद कृति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. बाय बाय फॉर नाउ.